بٹ صاحب آپ سے شروع کریں گے. خان صاحب کا علاج تو جاری ہے, علیمہ خان صاحبہ مطمئن نہیں ہے, وہ کہہ رہی ہیں ان کی آنکھ سے ان کو صحیح طرح نظر نہیں آ رہا, پی ٹی آئی کی بھی تسلی نہیں ہو رہی ہے. یہ کیا ہے, کیسے رسپونڈ کریں گے ان الزامات کو جو آپ لوگوں کے اوپر وہ لگا رہے ہیں کہ کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے سارے پروسیس کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ان کے اندر کے معاملات کا ہم ذمہ دار نہیں ہیں. آپ نے آج دیکھا علیمہ خان صاحبہ کی بھی قانون نے کہا کہ جتنے لوگ آرام کر رہے ہو, انجوائے کر رہے ہو, نکل جاؤ, میرے بغیر تم فیصلہ کیسے کر سکتے ہو. یہ چیزیں ساری آپ نے دیکھی, یہ ان کے آپس کی چیزیں ہیں. لیکن علاج کی جو آپ بات کر رہے ہیں, سپریم کورٹ ادارہ ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا, آرڈر کیا چیف جسٹس نے, جاؤ جا کے دیکھو کیا حالات ہیں. 3 گھنٹے میں وہ وہاں بیٹھے بھی رہے, سارا کچھ ہوا. اب رپورٹ جمع بھی ہوگی, آئی اسپیشلسٹ نے آ کے ان کو دیکھا, دوسرا انجیکشن بھی اب لگ گیا. اب آپ مجھے بتائیں سپریم کورٹ سے اوپر کون سا ادارہ جس پہ اعتماد کریں گے؟ یہ اگر ان کا کام ہی یہی ہے کہ ہم نے الزام لگانا ہے, ہم نے باہر آ کے بات ہی اور کرنی ہے, ان کو ان سے کوئی اس چیز سے سروکار نہیں ہے کہ اس کا علاج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, وہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے. اس کا ثبوت علیمہ خان نے دے دیا. اس نے کہا یہ کون ہوتے ہیں میرے بغیر فیصلہ کرنے والے. بات یہ ہے کہ آپ اگر اس رویے سے, جس رویے سے چل رہے ہیں 2 سال سے, اور یہی انہوں نے طریقہ رکھنا ہے, بات نہیں کرنی, یہ نہیں چھوڑیں گے, اپنے فورسز پہ حملے کریں گے, کسی کی بات نہیں سنیں, تو اس رویے سے آپ بالکل کہتے ہیں نا ایسولیٹ ہو گئے. آپ چلتے رہے اس طریقے سے, اپنا رویہ چینج نہیں کریں گے. آپ کے ان کے انٹرنل میٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ اس ایشو کو ایشو بنا رہے ہیں. گورنمنٹ ان کو بہت ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ٹریٹمنٹ دے رہی ہے. گوہر صاحب کے بارے میں کہا حکومت نے, ان کو پہلے بھی ملنے کی اجازت تھی, دوبارہ ان کو ملنے دے. پارٹیوں نے کیوں نہیں اجازت دے رہی, کیا ان پر بھی شک ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال گندم جواب چنا. آپ نے ان کے صحت کے بارے میں سوال کیا, میں نے بتایا کہاں پہ لے گئے. بڑی سمپل سی بات ہے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں عادل صاحب, جب مریض کہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں تو ڈاکٹر لاکھ کہتے رہے میں ٹھیک ہوں, تو آپ ڈاکٹر کی مانیں گے یا مریض کی مانیں گے؟ کل خان صاحب کا پیغام آیا ہے کہ میری آنکھ ٹھیک نہیں ہے. کوئی لاکھ کہے کہ ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے, اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. یہ بات کر رہے ہیں رپورٹ کی, تو جب سلمان صفدر صاحب گئے اور انہوں نے رپورٹ جمع کروائی تو انہوں نے یہی رپورٹ میں لکھا ہے کہ ان کی آنکھ سے بالکل 85% خراب ہے. 85% کا مطلب ہے ڈسیبلٹی. آپ انٹرنیشنل بے شک رولز دیکھ لیں, اگر کسی کی آنکھ 85% خراب ہو جائے تو اس کو ڈسیبلٹی کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو کل بھی خان صاحب کا یہ پیغام آیا کہ میری آنکھ ٹھیک نہیں ہے, تو ان کی آنکھ ٹھیک نہیں ہے. مجھے اس لاجک کی سمجھ نہیں آ رہی, مجھے اس بے حسی کی سمجھ نہیں آ رہی کہ الشفا جو کہ آئیز کا ایک ہاسپٹل ہے اور گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے, وہاں پہ ان کو لے جانے میں حرج کیا ہے بھائی؟ خدارا آپ کسی کی زندگی کے ساتھ, کسی کی بینائی کے ساتھ تو نہ کھیلیں. آپ کھیل رہے ہیں طریق انصاف کے ساتھ پچھلے 3 سالوں سے, ہر طرح سے آپ نے کھیل کے دیکھ لیا. نہ جماعت ختم ہوئی, نہ عمران خان ٹوٹے, نہ جماعت ٹوٹی, ووٹ بینک جو ہے وہ 90% پہ آپ کی حرکتوں نے پہنچا دیا. لیکن آپ ان کی صحت کے ساتھ نہ کھیلیں, ان کی بینائی کے ساتھ نہ کھیلیں, ان کو ان کے ڈاکٹر سے اور الشفا کے ڈاکٹر سے چیک کروائیں. ویری کلیئر بیفور ہی کامنٹس آن دس. لیکن آپ لوگ گوہر صاحب کو کیوں نہیں جانے دے رہے ملنے کی؟ کب گوہر صاحب کو ہم نے روکا ہوا ہے میرے بھائی؟ اور ایک گوہر صاحب گورنمنٹ نے اجازت دی, آپ کی پارٹی نہیں جانے دی. وہ کل بھی میرے ساتھ تھے اور میرا بھی نام تھا, تو ان کو تو کسی نے نہیں ملنے دیا. کل ہم اکٹھے وہاں پہ جیل کے باہر انتظار کرتے رہے ہیں. نہیں, بٹ گورنمنٹ نے تو کہا ہے کہ وہ مل سکتے ہیں. میری بات تو یہی تو گورنمنٹ کی بات ہے. جھوٹ بولتے ہیں, آپ کو دونوں کو پروپیگنڈا کرتے ہیں. نو, ہم 6 بندوں کی لسٹ تھی, اس میں سے انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں مل سکتا. میں کل کی بات کر رہا ہوں. کون سے گوہر نایاب ہیں جنہیں آپ بھیجنا چاہتے ہیں؟ میں کل کی بات کر رہا ہوں, انوت کر رہا ہوں. میں ایک ان کو بات بتاتا ہوں, یہ روش ان کی اب نہیں ہے, یہ شروع سے ایسے ہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے پاس جو رپورٹ جمع ہوئی, ڈاکٹر آئی اسپیشلسٹ جنہوں نے, جو نیوٹرل ہیں, اگر ہم اپنے کو ڈاکٹر بھیجتے ہیں, انہوں نے کہنا تھا دیکھو جی انہوں کے ڈاکٹر ہیں, انہوں نے اپنی بات کی ہے, ان کے ڈاکٹر جائیں گے, وہ آ کے باہر آ کے اس طرح کی الزام تراشی کریں گے جو یہ ان کا وتیرہ ہے چل رہا ہے. جب نیوٹرل ڈاکٹر سپریم کورٹ کے حکم پہ جاتے ہیں, بٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیشنٹ کمپلین کر رہا ہے, میرا مسئلہ کدھر کمپلین کی ہے, کس کو کی ہے؟ ان کو یہ ملی, بشرا بی بی کل ملی ہیں. اچھا وہ بی سے میری بات سن, آپ دیکھیں نا, آپ تو اتنے بے حس ہیں کہ آپ کسی قیدی کو, اس کی بیمار ہیں وہ, اور آپ
हॉस्पिटल भी लेके आते हैं, ना फैमिली को मिलने देते ना फ्रेंड्स को। चलो भट्ट साहब को जरा मौका देना जी। भट्ट साहब, बुशरा बीबी की उनकी मुलाकात होती है उधर हाँ। जेल में, ये भी आप मान रहे हैं कि कोई नहीं? जी हुई है मुलाकात। चले शुक्र है यार, कोई चीज़ तो माने। अब बात ये है कि जिस रवैये पे आप चल रहे हैं, जो आपने तरीका इख्तियार किया हुआ है, आप जाते हैं, आप जाके वहाँ, अभी आप ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके बैठ गए, ये हाई कोर्ट के बाहर जाके बैठ गए, ये जाके इन्होंने धरना दिया, वो बाद में कहा हमारा धरना ऑफिशियली नहीं था, हमने ये किया ही नहीं। इनके अंदर आप मुझे बताएं, इनकी हर चीज़ के हम जिम्मेदार हैं। कल ये इकट्ठे नहीं होते, वो मियाँ साहब कहते थे कि कुछ बात हो तो कहो जी ये भी मेरे पे ही डाल दो यार, ये मैंने किया है। कल उनकी वो बहन गिरी, अल्लाह उनको सेहत दे, एक वो आपस में कुछ थे, अब अल्लाह ना करे ये कल कहते जी ये भी आपने कोई बंदा भेज दिया था। तो भाई इल्ज़ामात तो आप दूर रहें, आप ये बताएं कि उनका इलाज हो रहा है, आपका कंसर्न इलाज है ही नहीं, आपका कंसर्न है प्राइवेट ट्रीटमेंट के हक में नहीं है फेडरल गवर्नमेंट। देखे ना, ये अगर मैं बताता हूँ एक और बात, देखें मैं अगर सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा हुई है, अगर सुप्रीम कोर्ट का में जो रिपोर्ट जमा हुई उसका डॉक्टर ये कहता है, वो रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर है ना, वो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा रहे हैं कि जी इनका इलाज हमने जाके पिम्स हॉस्पिटल में करना है या अल शफा में करना है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगा, 1 मिनट में वो चले जाएंगे वहाँ। अगर वो कहेंगे इनको बनी गाला भेज दें, ऑर्डर टू सुप्रीम कोर्ट उनको भेज देंगे, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। हुकूमत ने ना इमरान न्याजी को जेल में रखा है, अदालत ने रखा है, जिस अदालत ने रखा है उसके पास जाएं, वो उसको बरी कर दे, हमें कोई इतराज़ नहीं है। सियासी कैदी नहीं है वो, ये जो बना रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दे रहे हैं, आपके वजीर आला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलना चाहते हैं, वो कहते हैं अदालत ने उनको अंदर डाला है, आप हमारे पे क्यों प्रेशर डाल रहे हैं, फिर अदालत से ही ले लें। अच्छा देखें, हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दे के एहतजाज करें तो भी इनको इतराज, हम नहीं वो तो आपका नहीं, नहीं, मेरी बात सुने, अभी तो इतराज कर रहे हैं ना, नहीं, मैं बता रहा अब हूं। बोलने तो देना। पार्लियामेंट लॉजेस में धरना दिया हुआ था, पार्लियामेंट लॉजेस से मुझे उठा लिया और मुझे 3 दिन रखा हस्बे जाम में। उसके बाद एक FIR दी कि मैंने पुलिस पे फायरिंग की है और मैंने सीधे फायर मारे हैं पुलिस को। उन्हें लाइफ जैकेट्स पहनी हुई थी, बच गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो सारे पुलिस वाले बच गए जिनको मैंने फायर मारे थे। मेरे साथ 4 MPA भी थे, एक ex-MNA भी थे, हम सब ने फायर मारे हैं उनको, वो बच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये इनकी हरकतें हैं। अगर वो भाई FIR साहब मंगवा लें तो हम जरा उनसे पूछते कि मेरी बात तो सुने, क्या मतलब है, मैं FIR से बेल करवा के आ रहा हूं, मेरी बात तो सुने। देखिए भट्ट साहब मेरी बात करने दें। ये नहीं, मैं ऐसे नहीं, मेरी बात नहीं, इस तरह नहीं करेंगे। आपने इल्जाम किया है मुझ पे, FIR हुई है, मैं जेल गया। और भाई 4 नहीं बेशुमार गोलियां मारी है मैंने। अच्छा FIR में ये लिखा है तो लिखा हुआ है ना। चले यार वो हमें बता दें, हम जाके इंक्वायरी मेरी बात तो सुने, उसी में मैं बेल करवा के बाहर आ रहा हूँ। तो बेल आपकी कैसे होगी? तो बेल कैसे होगी? झूठ जो था, ना कोई फायर हुआ, ना कोई बात हुई और ना कोई वकूआ हुआ, मुझे उठाया पार्लियामेंट लॉजेस से, उसकी फुटेज है। अच्छा आज उमर हसन को उठाया, वो FIR लाइन जिसमें ये फायर कर रहे हैं, अभी मेरी गाड़ी में पड़ी है। मैं जाके पूछूंगा कि यार आप कैसे बाहर आएंगे? हजारों FIR हो चुकी हैं 9 मई के बाद, वो तो आपने किया है ना। तो सारी ऐसी झूठ के पलंदे हैं, एक से एक FIR। आप क्या कह रहे हैं कि इन पे ये FIR ऐसी नहीं हुई? नहीं मैं बताता हूं। ठीक है जी, आदिल भाई साहब, ये FIR अगर नहीं हुई, ये नहीं हुई सारी, हाँ जी, अगर ये नहीं हुई तो सारी सच्ची, सारी सच्ची। मैं इनके साथ से वादा करता हूँ, सुनने तो एक मिनट ब्रेक करें यार, 1 मिनट सुने तो सही। आपसे इज़हार हमदर्दी कर रहे हैं। मैं आपके साथ इज़हार हमदर्दी कर रहा हूं यार, आप इनके साथ प्यार करो तब भी यही इनकी हालत है। हजारों FIR हम पे हुई हैं, मैं वैसे जिक्र कर रहा हूँ। लेकिन ऐसी 9 मई से लेके आज तक नहीं किया, ऐसे ही ढूंढा था जैसा मैंने फायर की है, ऐसे ही 9 मई था। 9 मई नहीं किया, ऐसे ही 9 मई है जैसे मैंने फायरिंग की है। मैं आज ऐसे ही 9 मई है जैसे मैंने फायरिंग की। अच्छा मैं फिर आज ये बात करता हूँ, जब तक ये 9 मई वाले वाक़े पे माफी नहीं मांगा, अल्लाह ना करे कौन माफी मांग रहा है, जब किया ही नहीं है, कोई नहीं मांगेगा। ये आप लोगों की ख्वाहिश रहेगी। वो झंडे किसके थे? ये ख्वाहिश रहेगी आप वो लोगों डॉक्टर की। यास्मीन कौन थी? वो भाजा कौन था पैंट उठाए 9 हुए? मई यार आप लोग किसी बात को मानते ही नहीं। भट्ट साहब 9 मई फास्ट फ्लैग था, 9 मई फास्ट फ्लैग है, 9 मई फास्ट फ्लैग राशिद कौन है? वो जो कह रही थी कि कोई इधर ना जाए और इधर हम कोई कह रहे इधर ना जाए, उसने कहा इकट्ठे होकर चलते हैं। अगर यही आप दिखा दे, अच्छा जी, अगर यही आप दिखा दे कि वो कहते हैं कि आए कहीं हमलावर हो, आपकी सारी नहीं उसने कोई एक बात तो सच्ची कर दे भट्ट साहब, कोई एक तो सच्ची कर दे। सुने मुझे बताएं, आप कोर कमांडर घर क्या करने गए? कौन? आप। तो हम तो कहते हैं आजाद इलेक्शन कमीशन बनाए, कोर कमांडर कराएगा। वो एक मिनट जी आदिल साहब, वो जो पेंट कोर्ट में मलबूस लोग
गेट खोल के लोगों को अंदर एंटर करवा रहे थे, काश बन जाता। वो हमारे थे या किसके थे? नहीं, अच्छा, वो पैंट 3 पीस में मजबूत लोग जो कोर कमांडर हाउस में लोगों को घुसवा रहे थे, काश एक आजाद इलेक्शन कमीशन बन जाता, 2 दिन को उधर ले गए, चले आ गए। जाते। और क्या बात है आपकी। फिर आप बताएं ना, वो आप कोर कमांडर के घर क्या उसको नहीं गए हम, वो आप उनकी कहते इंक्वायरी नहीं करवाएं, गए। आजाद इलेक्शन कमीशन बनाए, कोर कमांडर को दूध का कहने दूध गए। और पानी का पानी हो जाएगा। किसको कहने गए आप? कोर कमांडर को? क्या कि भाई आप उधर क्यों गए? हम नहीं गए, वो जो लोग गए हैं उनकी इंक्वायरी करवाएं। तो वो कौन थी? यास्मीन राशिद आपके साथ तो थी वो ना? अगर कोर कमांडर हाउस में जस्मीन राशिद इंटर हुई है, हाँ। तो आपकी सारी की सारी एफआईआर दुरुस्त। अच्छा, मैं बात ठीक है जी। अच्छा, आज साहब इसी बात पे मान लेते हैं आज इसी बात पे चले आप जरा उनको पूरा करना जी। अच्छा, कोर कमांडर के घर आप गए कि वो भी नहीं गए? गाइड उसके पास उस तरफ गए कि नहीं गए आप? कोर कमांडर हाउस नहीं गए, वो किधर रोड गए? है और उससे बहुत दूर खड़ी थी यास्मीन राशिद। अच्छा जी, आप मुझे अगर बताएं- उस घर में दाखिल हुई हैं, आपकी ओके। सारी बातें सच्ची। लो जी, फिर जिन्होंने आग, एक और बात मुझे बताएं, एक तारीख हिस्ट्री ढाले, आज तक कोई सियासी जमात GHQ पे और कोर कमांडर के घर गई है एहतजाज करने या हमला करने? एक बता दे। मेरी बात सुनो, यहाँ पे लोग ये सुप्रीम लोग कोर्ट हैं। पे हमलावर होते रहे हैं, वो हम नहीं थे। आपके MNAs 98 में सुप्रीम अच्छा, कोर्ट पे चढ़ दौड़े माफी थे। मांगी हमने फिर सुप्रीम- सुप्रीम कोर्ट में गए ना एहतजाज करने। हाँ, वो कह रहे हैं चढ़ माफी दौड़े मांगी। नहीं, उस तो अपना आप ख्वाजा भी गए हसन होते साहब तो हम भी माफी मांगते। ये मानते ही नहीं, ये हम इनकी गए होते अगर प्रॉब्लम आप तो है। कंपेयर भी कर रहे हैं ना, आप यार, देखिए मैं आप आपको वो आप बता भी कंपेयर रहा वो हूं। कह रहे हैं कि आपकी पार्टी ने कोर कमांडर हाउस ये GHQ पे हमला किया, आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट पे तो हमला मैंने किया। क्या कहा आगे तो मैंने जवाब कहा, हमने दिया? माफी नहीं, मांगी है, इन्होंने आप किया ये कह रहे हैं हमारे था, बंदे तो नहीं किया होता तो जरूर मांगते। नहीं, ये मैं कह रहा हूं, ये प्रॉब्लम फिर है आपको इनकी। पहले आर्गुमेंट में ये कहना चाहिए ना कि सुप्रीम कोर्ट हो या कोर कमांडर हाउस हो, दोनों जगह जाना तो गलत है। गलत नहीं तो और क्या लेकिन है? आपने उसके कंपैरिजन में कहा है कि तो आप इनको कि कोर बताइए, कमांडर हाउस इनकी से असलियत बढ़िया। बताइए। ओके हाँ, ये अच्छा, क्या है? एक सेकंड, वो जिसने पैंट उठाई थी वो कौन था? वो कहाँ पे खड़े थे जिन्होंने उठाई थी? कहाँ पे खड़े थे? नहीं, पैंट किया उसने, क्या कहा, ये किसकी है? मुझे तो नहीं पता। वो क्यों? अदालत में केस यार, है, आप मेरे लोग आर्गुमेंट देखो, करूंगा तो जिंदगी में prejudice हो याद जाएगा। रखो, रियलाइज करो अपनी गलती। ये कौन भी माफ करेगी भी, अदालत भी और शायद भाई, आपको हमें- माफ कर दे, हमें- और वो इदारा हम भी शायद सब आपको अल्लाह से माफ कर माफी दे। मांगते हैं। हम भी और अल्लाह से जमीनी माफी खुदाओं से माफी नहीं मांगते। बात और है। आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल 100% ठीक है। बस ठीक है, ये इनकी हालत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।